وہ ایک شاندار عمارت تھی۔ اس جنگل میں ایک محل کا ہونا حیران کن ہی تھا۔ اس کی 4 دیواری کی اونچائی بہت زیادہ تھی۔ میں پورچ میں اتر کر یہی دیکھ رہا تھا کہ میرا میزبان بولا، یہ 4 دیواری اس لیے اونچی بنائی گئی ہے اور اس پر لوہے کا جنگلہ اس لیے لگایا گیا ہے کہ اس جزیرے کے ہونہار درندے اور وحشی لوگ ادھر نہ آ جائیں۔ وہ میری نگاہیں بھانپ کر مجھے ایک دوسرا ہی پیغام دے کر سمجھا گیا تھا۔ میں اس کے ساتھ اندر کی جانب بڑھ گیا۔ سامنے ہی ایک وجیح مرد اور حسین عورت کھڑے تھے۔ اس نوجوان نے مجھے ان کے حوالے کیا۔ وہ مجھے لیتے ہوئے ایک شاندار کمرے میں لے گیا جو کسی 5 اسٹار ہوٹل کے سوئٹ جیسا تھا۔ تمہیں یہاں رہنا ہے، تم فریش ہو جاؤ تو پھر تمہارے لیے یہی کھانا لاتے ہیں، باقی سب کھا چکے ہیں، اس مرد نے کہا اور باہر چلا گیا۔ اس جانب باتھ روم ہے، جاؤ میں تمہارے لیے کپڑے نکالتی ہوں، اس عورت نے لچک کر کہا اور ایک جانب چلے گی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں یہاں قیدی ہوں یا مہمان۔ رات گئی میرے سو جانے تک انہوں نے میرے ساتھ مہمانوں والا سلوک ہی رکھا۔ میں سو جانے کے لیے بڑ پر دراز ہوا تو میلے والے دن سے لے کر یہاں آ جانے تک جو مشاہدہ کروایا گیا تھا میں اس پر غور کرنے لگا۔ یہ مشاہدہ بے مقصد نہیں تھا، لازمی طور پر میری آنے والی زندگی میں اس کی ضرورت تھی۔ مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا تھا۔ اس مشاہدے میں مجھے کیا کیا بات سمجھائی گئی تھی، اس کا ظہور ہونا ابھی باقی تھا۔ نہ جانے میری کب آنکھ لگ گئی۔ میں صبح جب بیدار ہوا تو ہر جانب اجالا پھیلا ہوا تھا۔ میں اٹھ کر کھڑکی میں گیا تاکہ باہر کا نظارہ کر سکوں۔ میرے سامنے ایک گہرا سبز لان تھا اور اس کے آگے گہرے سبز اور شاداب درخت۔ میں نے کھڑکی کھولی تو خوشگوار ہوا سے ایک دم میرے اندر خوشگواریت اتر گئی۔ میں کافی دیر وہیں کھڑا رہا، تبھی مجھے پشت سے نسوانی آواز سنائی دی، آپ تیار ہو جائیں، کچھ دیر بعد میٹنگ ہے۔ میں نے گھوم کر دیکھا، جین اور ٹی شرٹ پہنے ایک لڑکی کھڑی تھی۔ اس کے بال کھلے تھے اور چہرے پر سکوت طاری تھا۔ اس کی آواز اس کے چہرے کا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ اوکے تم جاؤ۔ میں نے کہا نہیں، میں آپ کو تیار کروں گی۔ اس نے کہا تو میں نے کاندھے اچکا دیے۔ وہ ایک بڑا ہال تھا جس کی چھت خاصی اونچی تھی۔ وہ ہال ہی تھا، وہاں کرسیاں رکھی ہوئی تھی، ہر ایک کے سامنے میز تھا۔ میں نے بزنس سوٹ پہنا ہوا تھا، یوں لگ رہا تھا جیسے میں کوئی بزنس میٹنگ کے لیے جا رہا ہوں۔ درمیان میں ایک خالی میز پڑی ہوئی تھی جس کے دونوں جانب کرسیاں رکھی ہوئی تھیں۔ وہی لڑکی مجھے خالی کرسی پر بٹھا گئی۔ میرے بیٹھتے ہی ہال کی دائیں جانب سے ایک دروازہ کھلا اور ایک ادھیڑ عمر شخص نمودار ہوا۔ وہ آتے ہی میرے پاس بیٹھ گیا۔ اس نے میری طرف دیکھا، پھر شفاف انگریزی میں بولا، جمال، تمہیں یہاں میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہر والدین کی طرح بچپن میں میرے والدین نے بھی میرا ایک نام رکھا تھا جس سے میں جان چھڑا چکا ہوں۔ وہ نام ایک خاص مذہب اور قوم کی نمائندگی کرتا تھا۔ جب مجھے شعور آیا تو میں نے اس سے جان چھڑوا لی۔ میں آزاد ہو گیا۔ اگر تم مجھے پکارنا چاہو تو اپنی زبان سے آزاد کہہ سکتے ہو۔ یہ کہہ کر وہ ایک لمحے کے لیے رکا، پھر کہتا چلا گیا، میرا تمہیں یہاں لانے کا طریقہ بہت غلط تھا، یوں جیسے کسی کو اغوا کر کے لایا جاتا ہے، لیکن میری مجبوری تھی۔ یہاں تمہاری طرح کئی لوگ ہیں، سبھی کو ایسے ہی لایا ہوں۔ سب سے الگ الگ بات کرنے میں وقت لگ جاتا، یہاں سب سے فوراً بات ہو سکتی ہے۔ اب دیکھو، لوگوں کو یہاں اکٹھا کرنے میں 3 ہفتے لگ گئے۔ الگ الگ بات کرنے اور سمجھانے میں کتنا وقت لگتا؟ تم مجھ سے کیا بات کرنا چاہتے ہو؟ میں نے تحمل کے ساتھ اس سے پوچھا۔ طاقت، اور بہت زیادہ طاقت۔ اس خطے پر حکومت چاہتا ہوں جس کے میں اور تم واسی ہو۔ سرحدوں کی کوئی اہمیت نہیں، مذہب، زبان، رنگ، نسل، کسی کی کوئی اہمیت نہیں۔ ان سب سے ماورا ہو کر اس خطے پر حکومت کرنی ہے جس پر صدیوں سے دوسرے لوگ ہمیں محکوم بنائے رہے۔ وہ گئے تو دور دراز کے لوگ ہم پر حکومت کر رہے ہیں۔ کیوں؟
शायद इसलिए कि हम महकूम रहना पसंद करते हैं, मैंने तलही से कहा। तारीख ये बताती है कि इस खित्ते पर आर्यन ने कब्जा किया। उन्होंने इंसानियत पर जुल्म ये किया कि मजहब को इस्तेमाल किया, इंसान पर इंसान की हुकूमत के लिए। शूद्र भी तो इंसान थे, उन्हें जलील करके रख दिया। ये इनका मजहब नहीं बल्कि इनका खौफ था कि हमसे अपना वतन वापस न छीन लें। ये हरबा कामयाब रहा, यहाँ तक कि अंग्रेजों ने भी यही हरबा मुसलमानों के लिए इस्तेमाल किया। खैर, आज भी ऐसे ही जुल्म जारी हैं। सरहदों ने मुल्क बना दिए, लेकिन हर मुल्क में इंसान का इस्तेहसाल जारी है। गुर्बत, भूख, बीमारी, जलालत इंसान का मुकद्दर ही क्यों। 10 से 15% लोग इतनी दौलत रखते हैं कि उनका शुमार नहीं। तो क्या हम उनसे दौलत छीन कर इन गरीबों में बांट दें? मैंने सुकून से कहा, जरूरी नहीं कि छीन लें। ताकत के आगे हर शय बेबस हो जाती है। मैं ये नहीं चाहता, मैं तो इससे भी आगे का सोच रहा हूँ। अगर तुम लोग मेरा साथ दो तो हम इस खित्ते में अपनी मर्जी की हुकूमत बनाएं, जब चाहें और जहां चाहें, लेकिन बाहर की ताकतों को यहाँ घुसने ही नहीं दें। मतलब तुम किसी की ग्रेट गेम के मोहरे हो और आगे हमें मोहरे बनाना चाहते हो। मैंने कहा, तुम इस तरह से सोच सकते हो, लेकिन मैं किसी का मोहरा नहीं। मैं तो उस ग्रेट गेम से निकलने का कह रहा हूँ। छुपे हुए हाथ जब चाहें और जिसका चाहे खून बहा दें। क्या तुमने कभी किसी मासूम बच्चे की खून में नहाई हुई या अजली लाश देखी है? अगर देखी है तो क्या जज्बात थे तुम्हारे? मुझे जज्बाती करने की कोशिश मत करो, सीधी बात करो। मुझे ही क्यों चुना? और तुमने कैसे मान लिया कि मैं तुम्हारी बात मान जाऊंगा? ना मानो, जबकि मुझे यकीन है कि तुम मेरी बात से इनकार नहीं कर पाओगे। मैं पिछले 1 साल से तुम्हें देख रहा हूँ। तुम में हिम्मत है, हौसला है, कुछ करने की कुव्वत भी है, लेकिन तुम्हारे पास कोई मकसद नहीं है। हालात ने तुझे जिस राह पर डाल दिया है, तुम भटक भागे जा रहे हो। तुम में सिर्फ एक खूबी है जिसकी वजह से मैंने तुम्हें यहां लाने का इतना तरद्दुद किया। तुम मुजरमाना जहन नहीं रखते हो, वरना दौलत, ताकत और हुकूमत किसे नहीं चाहिए। जराइम पेशा लोगों की यहां मैं लाइन लगा देता, जिसका कोई फायदा नहीं। ये कहकर वो सांस लेने के लिए रुका, फिर बोला, तुम मेरे मेहमान हो, यहां सुकून से रहो, सोचो और फिर फैसला देना। एक दिन तुम वापस भी चले जाओगे, जाए बिना चारा भी नहीं। हतमी फैसला तुमने ही करना होगा। तुम कौन हो और असल मकसद, ये कबल अज वक्त सवाल है। मैं अपने बारे में भी बताऊंगा, मेरा मकसद क्या है ये भी मालूम हो जाएगा। लेकिन इतना बता दूं, मैं बेजा खून बहाने के खिलाफ हूँ। मुझे नफरत है जो साजिशें करते हैं, मजहब की आड़ लेकर अपने गलीज मकासद पूरे करते हैं, इंसानियत का नाम लेकर, मगर वो मंसूबे घड़ते हैं। तुम सिर्फ 1 हफ्ता रहो, सब समझ जाओगे। अगर मैं 1 हफ्ते से पहले ही यहाँ से चला गया तो? मैंने उसकी तरफ देखकर कहा, ये तुम्हारी शदीद गलत फहमी होगी। मेरी मर्जी के बगैर तुम यहाँ से जा भी नहीं सकते हो। अभी तुमने ये जगह नहीं देखी। खैर, अगर तुम फिर भी यहाँ से चले जाओ तो तुम जो कहोगे वो मैं करने को तैयार हूँगा। ये लफ्ज याद रखना मिस्टर आजाद, क्योंकि मुझे तुम्हारी बातों से बदबू आ रही है। तुम भी उन्हीं बेगैरत लोगों में से हो जो इंसानियत और गरीब लोगों का नाम लेकर दरिंदगी पर उतर आते हैं, खुद को सेकुलर कहलवाकर मजहबी होनहारी करते हैं। मैं तुम्हारा निकाब उतार दूंगा। मैंने सख्त लहजे में कहा तो वो एकदम से हंस दिया, फिर बोला, चलो ऐसे ही सही। मैं चाहता था कि हम सुकून और प्यार से बात को समझते, लेकिन तुम तो कुछ और ही चाह रहे हो। आज की मीटिंग यही खत्म करते हैं, बाकी बातें कल सही। उसने ये कहा और मेरी तरफ देखता हुआ उठ गया। मैं उस हाल से बाहर निकला। मैं बहुत हद तक समझ गया था कि वो क्या चीज था, उसके अज़ाइम क्या हो सकते थे।
مجھے اس کی باتوں نے ذرا سا بھی متاثر نہیں کیا تھا۔ میری ساری توجہ وہاں سے فرار ہونے کی جانب ہو گئی۔ میں محل کی راہداریوں سے ہوتا ہوا باہر جانے لگا۔ میں باہر آ گیا۔ میرے سامنے ایک لمبا راستہ تھا جس کے دونوں طرف سبز لان تھے۔ بیرونی گیٹ پر کوئی چوکیدار یا سیکیورٹی والا نہیں تھا۔ مجھے تھوڑی سی حیرت ہوئی کہ سیکیورٹی گارڈ کے نام پر کوئی بندہ نہیں تھا۔ اس کے ساتھ ہی یہ خیال آیا کہ اس نے کوئی جدید قسم کا سیکیورٹی سسٹم بنایا ہوگا جسے بہرحال سمجھنا ضروری تھا۔ میں سیڑھیاں اترتا چلا گیا۔ میں نے جیسے ہی گیٹ کی طرف جانے والے راستے کی طرف قدم بڑھائے، ایک دم سے زوردار کہکوں کی آواز سنائی دی۔ میں نے اس جانب دیکھا تو چند مرد اور 3 عورتیں بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ سبھی میری جانب دیکھ رہے تھے۔ ایک مرد نے ہاتھ ہلا کر مجھے اپنی طرف بلایا۔ میں ایک لمحہ سوچے بغیر ان کی طرف بڑھ گیا۔ میں ان کے پاس گیا اور ایک خالی کرسی پر بیٹھ گیا۔ تبھی وہی مرد بولا، یہ تو ہمیں معلوم ہو ہی گیا ہے کہ تم یہاں پر نئے ہو، اور تمہارے انداز سے لگتا ہے کہ تم مسٹر آزاد سے میٹنگ بھی کر رہے ہو، اور اب تم یہاں سے بھاگ جانے کی سوچ بھی رہے ہوگے۔ تمہاری ساری باتیں درست ہیں۔ میں نے اعتراف کر لیا تو وہ سارے ہنس دیے۔ یہ تو ٹھیک ہے، فوراً مان گیا۔ ایک عورت نے کہا، کیا ہم پوچھ سکتے ہیں تم کون ہو اور کہاں سے اٹھا کر لائے گئے ہو؟ مرد نے پوچھا تو میں نے اپنے بارے میں بتا دیا۔ اس کا مطلب تم پنجابی سمجھ سکتے ہو؟ ایک نوجوان نے کہا۔ ہاں، کیا تم بھی پنجابی ہو؟ میں نے اس کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ ہاں، میں بھی ہوں، اس نے دھیمے سے بتایا۔ اور تم لوگ؟ میں نے سب کی طرف دیکھا تو پہلے والی عورت بولی، ہماری تفصیل ذرا لمبی ہے، بتا دیں گے، لیکن اتنا بتا دیں کہ ہم بھی تمہاری طرح یہاں مہمان ہیں۔ یہ کہہ کر اس نے زوردار کہکا لگا دیا۔ تم باہر کی طرف اس لیے جا رہے تھے کہ یہاں سے فرار ہو سکو؟ پہلے والے مرد نے پوچھا، پھر فوراً ہی بولا، اور یہ بات یقینی ہے کہ تمہارے پاس کوئی ہتھیار بھی نہیں ہوگا۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، میں نے صاف کہہ دیا۔ تو پھر سن لو، تم یہاں سے باہر نہیں جا سکتے۔ میرے خیال میں تمہیں یہ بھی معلوم نہیں ہوگا کہ تم اس وقت ہو کہاں پر۔ میں جہاں بھی ہوں تو اسی زمین پر نا؟ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، زمین پر؟ اس نے طنزیہ انداز میں کہا، پھر یوں بولا جیسے وہ مجھے اس دنیا کا احمق ترین آدمی سمجھ رہا ہو۔ اگر یہاں سے نکلنا اتنا آسان ہوتا تو ہم سب یہاں سے کب کے جا چکے ہوتے۔ کوئی یہاں 4 ہفتوں سے پھنسا ہوا ہے، کوئی 2 اور کوئی 3، اور تم آج رات ہی آگے ہو۔ یہاں کے بارے پتا کچھ نہیں، اور تم کیوں نہیں نکل سکے یہاں سے؟ میں نے تحمل سے پوچھا۔ جس جگہ ہم ہیں یہ ایک جزیرہ ہے، اس کے چاروں طرف سمندر ہے۔ یہاں آنے اور یہاں سے جانے کا راستہ صرف ایک ہے، وہ وہی راستہ ہے جس طرح ہمیں یہاں لایا گیا۔ اس جزیرے پر گھنا جنگل ہے جس میں ہر طرح کا ہونہار جانور موجود ہے، یہاں سے لے کے ساحل تک۔ اگر ان جانوروں سے کوئی بچ بھی جائے تو ان وحشیوں سے کوئی نہیں بچ سکتا جو یہاں رہتے ہیں۔ ان وحشیوں کے ہاتھوں تمہاری طرح کا ایک سرپھرا ہلاک ہو چکا ہے، وہ اسے کھا گئے ہیں۔ اگر تم بھی ان کا نوالا بننا چاہتے ہو تو جاؤ، اور اگر بچ گئے تو آ کر ہم سے ہمارے بارے میں پوچھ لینا، ہم تمہیں اپنا تعارف کروا دیں گے۔ اسی عورت نے کہکا لگاتے ہوئے کہا۔ میں نے ان سب کی طرف دیکھا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ مجھے یوں دیکھنے لگے جیسے میں پاگل ہوں یا دنیا کا احمق ترین انسان ہوں۔ ٹھہرو، میں بھی تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ وہی پنجابی نوجوان اٹھ گیا۔ واہ، اچھا لگا مجھے، کیا نام ہے تمہارا؟ میں نے خوش ہوتے ہوئے کہا، مجھے سندیپ اگروال کہتے ہیں، تم مجھے سندھو بھی کہہ سکتے ہو۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا اور میری جانب قدم بڑھا دیے۔ ہم نے سب پر نگاہ ڈالی اور باہر کی جانب چل دیے۔ نیا پیراگراف۔ میں اور سندھو باہر جانے والے مرکزی گیٹ کی جانب بڑھتے چلے گئے۔
यहाँ तक कि हम गेट से बाहर आ गए। वहां आकर मैंने तवील सांस ली और चारों तरफ देखा। महल नुमा इस इमारत के आगे काफी दूर तक मैदान था। काफी फासले पर घना जंगल दिखाई दे रहा था। यूं लग रहा था जैसे हर तरफ से उस महल नुमा इमारत को जंगल ने घेरा हुआ हो। मैं जायजा ले रहा था कि सिंधु ने मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए पूछा, तुम्हें यकीन है कि तुम इस घने जंगल से गुजरकर साहिल तक पहुंच जाओगे? तुम मेरे साथ क्यों आ गए हो? मैंने इसका जवाब देने की बजाय सवाल कर दिया। मेरा दिल कहता है कि मैं तुम पर भरोसा कर लूं, हालांकि मैं तुम्हारा नाम तक नहीं जानता। उसने खुशगवार लहजे में कहा तो मैंने मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर तुम अपना भरोसा कायम रखो। हम न सिर्फ साहिल तक जाएंगे बल्कि साहिल से भी आगे जाएंगे। बाकी रही नाम की बात तो मुझे जमाल कहते हैं, मतलब मुसलमान हो और पाकिस्तानी। उसे सर हिलाते हुए यूं कहा जैसे वो बहुत कुछ समझ गया हो। चले फिर? मैंने पूछा तो उसने इस बात में सर हिलाते हुए कदम बढ़ा दिए। उसे मैं समझाता भी तो मेरी बात उसकी समझ में नहीं आने वाली थी, क्योंकि मैंने अपना मकसद देखकर समझा था। मैंने समझ लिया था कि अब मुझे क्या करना है। मेरे मकसद का तयन हो गया था। अब मेरी जिंदगी मेरी नहीं रही थी, मैं मुशाहिदा कर चुका था। वो लोग जो मौत से भागते हैं, मौत उनके ताकुब में रहती है, और जो लोग मौत का ताकुब करने लगे, जिंदगी खुद उसकी हिफाजत करना शुरू कर देती है। ऐसा उन्हीं लोगों का मुकद्दर होता है जो आला मकसद लेकर चलते हैं, फिर कायनात की तमाम जराए उनके मददगार बन जाते हैं। ये कोई नई या अनोखी बात नहीं। तारीख के औराक ऐसी बेशुमार मिसालों से भरे पड़े हैं। जिंदगी वजूद के साथ खत्म नहीं होती, उसका ताल्लुक अमाल के साथ है। कुछ ही देर के बाद हम घने जंगल में दाखिल हो चुके थे। हमारे पास हथियार नाम की कोई शय नहीं थी। जिस तरह सहरा की अपनी महसूस आवाज होती है, इसी तरह जंगल की भी अपनी एक महसूस आवाज होती है। फर्क सिर्फ ये होता है कि जंगल में परिंदे बोलते हैं और हवा की सरसराहट से आवाज बदल जाती है। मुख्तलिफ परिंदों की मुख्तलिफ बोलियां समा बांध देती है। अगर खौफ को खुद पर मुसल्लत कर लिया जाए तो यही आवाजें कदम कदम पर डरा देने का बायस बन जाती हैं। यही हाल हमारे माशरे का है। कोई भी मकसद लेकर चलो, वो मकसद कितना ही आला और पाकीज़ा क्यों ना हो, इब्तिदाई सफर से ही मुख्तलिफ बोलियां सुनाई देने लग जाएंगी। मनफी मस्बत बोलियां जिनमें अगर बंदा उलझ गया तो मकसद की राह खोटी हो जाती है। और वो लोग जो अपने मकसद पर निगाह रखते हैं, बोलियां तो सुनते हैं लेकिन उन पर तवज्जो नहीं देते, वही अक्सर कामयाब ठहरते हैं। खौफ इंसानी सलाहियतों को निगल लेता है। दुश्मन इसी हथियार से खत्म करने की इब्तिदा करता है, लेकिन अगर बंदे के पास आला मकसद हो तो दुश्मन का पैदा किया हुआ यही खौफ एक हथियार बन जाता है। दुश्मन समझता है कि डर गया, उस वक्त पूरी तरह अपनी हबासत जाहिर करता है। यहाँ तक कि मुनाफिकीन भी पूरी तरह नंगे हो जाते हैं। यह मकसद की न सिर्फ जीत होती है बल्कि उसे जिंदगी मिल जाती है, और दुश्मन का फैलाया हुआ खौफ दुश्मन ही की मौत बन जाता है। यही मालूम होता है कि दुश्मन की औकात क्या है। हम जंगल में दाखिल होकर उसके टेढ़े मेढ़े रास्तों पर चलते चले जा रहे थे। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि इमारत से साहिल तक का कितना सफर है। इसकी मालूमात लेने की आदत और वक्त गुजारने के लिए मैंने सिंधु से पूछा कि शायद उसे मालूम हो, तो उसने कहा, मैंने यहीं से सुना है कि हर तरफ से 6 किलोमीटर है, मतलब 12 किलोमीटर मुहीत का ये जजीरा है। और क्या सुना है इसके बारे में? मैंने मजीद मालूमात के लिए पूछा। वही जवान लोगों ने बताया, वही जो उन लोगों ने बताया। होनहार जानवर, वहशी जंगली और ये भयानक जंगल, ये कहकर वो हंस दिया। अगर रास्ते में कोई नहीं आया तो हम दोपहर से पहले साहिल तक पहुंच जाएंगे। मैंने कहा तो उसने एक जोरदार कहका लगा दिया। ये मेरा पागलपन नहीं था, बल्कि मैं सिंधु को हौसला दे रहा था
और शायद वो भी ऐसा ही सोच रहा था। हमें अंदाजा नहीं था कि हमने कितना सफर तय करा है। एक जगह तालाब बना हुआ था, उसमें शफाफ पानी था। पानी को देखते ही प्यास उभर आई। मैं एक तने के साथ बैठ गया। सिंधु ने तालाब के पानी को चखा और सैर होकर पानी पी लिया। मैंने उस वक्त पानी पीने के लिए उठ गया जब एक तीर मेरे सर के ऊपर दरख्त में लगा। एकदम से मेरी सारी हिस्से बेदार होंगी। सिंधु भी देख चुका था, वो भी चौकन्ना हो गया। मुझे यही अंदाजा करना था कि ये तीर आया किस तरफ से था। मैं मुहतात निगाहों से हर तरफ देख रहा था कि अचानक 7-8 जंगली हमारे सामने नमोदार हो गए। उनके हाथों में नेज़े, भाले और तलवार नुमा हथियार थे। मुख्तलिफ उम्रों के काले काले स्याह नंग धड़ंग जंगली, जिन्होंने अपने इर्द गिर्द जीन या मुख्तलिफ कपड़ों के शॉर्ट्स बांधे हुए थे। इस पर उन्होंने पत्ते और पर बांधे हुए थे। उन्होंने हमें घेर लिया था। मैं और सिंधु ने एक दूसरे के साथ कमरे जोड़ ली थी। हम सभी एक दूसरे को नजरों ही नजरों में तोल रहे थे। मैं उनके पैंतरे को समझने की कोशिश कर रहा था। वो मुख्तात अंदाज में कदम ब कदम आगे बढ़ रहे थे। इससे पहले कि वो हम पर इकट्ठे होकर हमला करते, मैंने सामने वाले जंगली पर हमले की झुकाई देकर बिल्कुल दाएं जानिब वाले पर पड़ पड़ा। वो बिलाशुबा इस पैंतरे में था कि मैं सामने वाले पर हमला करता हूँ तो वो मुझ पर टूट पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसकी लम्हा भर की गफलत का मैंने भरपूर फायदा उठाया और उसे लेता हुआ जमीन पर जा पड़ा। मैं वहीं रुका नहीं। उसके हाथ से नेजा था। मैंने वो छीना और वहां से चश्मे जदन में हट गया। उसी लम्हे वहां तलवार और भाले के वार हुए। मैंने देखा उनका दायरा टूट चुका था। 3 जंगली नहत्ते सिंधु को घेरे हुए थे। उसी लम्हे मैंने एक चीख मारी और नेजा सीधा करके उनकी जानिब भागा। चीख से वो मेरी जानिब मतवज्जा हो गए। सिंधु ने इसका फायदा लिया और उनके घेरे से बाहर आकर एक जानिब भाग गया। मैंने नेजा उसकी जानिब फेंक दिया, जिसे उसने पकड़ लिया। वो जंगली कुछ कदम पीछे हट गए थे। पहला भरपूर हल्ला उन पर नफसियाती दबाव डाल गया था। हम अपने सामने थे। हम आमने सामने थे। वो सब एक तरफ और हम दोनों एक जानब थे। वो सभी एक जान होकर हम पर हमलावर हुए। मैं जरा सा तिरछा हुआ और एक जानब भाग निकला। वो आधे बढ़कर मेरी जानब आ गए और वहीं घूमते हुए उन्हें अपने पीछे लगाकर मैं भागता रहा। फिर उस वक्त जब मैंने उन्हें खुद को पकड़ने का मौका दे दिया, वो मेरे करीब आ गए तो मैं एकदम रुक गया। वो मुझसे आग लगे। मेरे जहन में था कि किसी के पास तलवार है और किसी के पास भाला। वो मेरे ऊपर से आगे जा गिरे। उसी वक्त मैंने एक से तलवार छीनी और लेते हुए एक जंगली की गर्दन पर रख दी। अपने साथियों से कहो कि वो हथियार पहनकर दूर हट जाएं। मेरे यूं कहने पर वो आंखें पटपटाकर मुझे देखने लगा, जैसे उसे मेरी बात की समझ न आई हो। हम बाकी ठटक गए थे। मैं चंद लम्हे इंतजार किया, फिर बोला, मैं जानता हूं तुम लोग अंग्रेजी समझते हो। मैं 3 तक गिनूंगा। ये कहकर मैंने तलवार की नोक उसकी गर्दन में चबो दी। वो तड़प उठा। उसे तेजी से अंग्रेजी में अपने साथियों से वही कहा जो मैं उसे कह चुका था। उन्होंने हथियार फेंक दिए। सिंधु ने जल्दी से वो सब हथियार इकट्ठे कर लिए। तभी मैंने सबको जमीन पर लेट जाने का कहा तो वो लेट गए। तभी सिंधु ने जोर से पंजाबी में पूछा, तुम्हें कैसे अंदाजा हुआ कि ये अंग्रेजी जानते हैं? तभी मैंने अंग्रेजी में ही जवाब दिया, ये जंगली नहीं है, बल्कि इस जजीरे के वो मुकामी लोग हैं जिन्हें उन्होंने अपनी सिक्योरिटी और लोगों को डराने के लिए रखा हुआ है। तुम्हें कैसे पता चला? इनके शॉर्ट्स और फिर इनके पैंतरे देखकर। मुमकिन है इनके अबाविदात जंगली हो, मगर ये नहीं है, मैंने कहा और तलवारें उसकी गर्दन पर रखकर बोला, बताओ मैं सच कह रहा हूं? जिस पर उसने आंखों ही आंखों में हाँ का इशारा कर दिया। फिर जरा मुश्किल अंग्रेजी में बोला, तुम हमसे तो बच जाओगे, लेकिन आगे क्या करोगे?
जंगल के दरिंदे हैं और गन बरदार सिक्योरिटी गार्ड। ये हमारी किस्मत है। हम तुम्हें भी कुछ नहीं कहना चाहते, न मारना चाहते हैं, न कोई तकलीफ देना चाहते हैं। अगर तुम हमारे रास्ते से हटकर चले जाओ, मैंने लहजे में हमदर्दी बरते हुए कहा। हम चले जाते हैं, उसने कहा तो मैंने फौरन तलवार उसकी गर्दन से हटा ली। वो उठ खड़ा हुआ, उसके बाकी साथी भी उठ गए। वो एक साथ होकर खड़े हुए और हमारे आगे झुके। उसी लम्हे उन्होंने हम पर छलांगे लगा दी। मैं अपने बारे में कह सकता था कि मैं गैर मुख्तार था। सिंधु कुछ ज्यादा ही था। वो हम पर टूट पड़े, 4 मेरी तरफ और 3 सिंधु की जानिब। उन्होंने हमें मुक्कोर के ऊपर रख लिया। तलवार मेरे हाथ से छूट गई थी। मैं मार खाते हुए यही कोशिश कर रहा था कि किसी तरह मुझे मौका मिल जाए। एक के मुक्के से मेरी गाल की जिल्द फट गई थी, जिससे लहू बहने लगा था। उनकी रफ्तार जरा सी ढीली हुई तो मैंने एक की गर्दन पर हाथ डाल दिया। हल्की सी आवाज आई तो वो तड़पने लगा। मैंने उसे छोड़ दिया तो वो जमीन पर गिर के तड़पने लगा। उसकी गर्दन की हड्डी टूट चुकी थी और बाकी तो मुझे मार ही रहे थे। मैंने दूसरे की गर्दन को काबू किया और उसकी गर्दन की हड्डी तोड़कर उसे फेंक दिया। बाकी 2 मुझे हैरत से देखने लगे। ये लम्हा मुझे चाहिए था। मैंने एक घुटना एक की टांगों के दरमियान मारा तो वो दोहरा हुआ और उसकी गर्दन मेरे हाथ में थी। अगले चंद लम्हों में वो भी जमीन पर था। ये देखकर चौथा भाग उठा। बाकी तीनों सिंधु को बेदर्दी से मार रहे थे। वो लहू लुहान हो रहा था। मैंने तलवार उठाई और उनकी तरफ भागा। मैंने जाते ही एक की कमर में तलवार घुसा दी। उसकी लर्जा हेज चीज फजा में फैल गई। बाकी दोनों रुक गए। वो हैरत से मुझे देख रहे थे। मैंने उन्हें मौका नहीं दिया। एक के चरका लगा तो वो बिलबिला उठा। तब तक सिंधु भी सीधा हो चुका था। उसने तलवार मुझसे पकड़ी तो एक भाग निकला, मगर सिंधु ने उसे जाने नहीं दिया। उसे भागते हुए उस जंगली को पकड़ा और तलवार उसके पेट में घुसा दी। सिंधु, यहाँ से निकलो फौरन। इनकी चीखें बहुत दूर तक गई होंगी। मुमकिन है इनके मजीद लोग आ जाएं। मैंने कहा तो उसने एक भाला उठाया और बाकी हथियार तालाब में फेंके और मेरे साथ चल दिया। इस दौरान हमने 2-4 चुल्लू पानी पी लिया था। अगले ही लम्हे में वहां से निकल गए थे। काफी दूर जाने के बाद हम एक ऐसे घने दरख्त के नीचे रुक गए जिसकी शाखें जमीन से लग रही थी। मुझे मेरा जख्म तकलीफ दे रहा था। इस वक्त मुझे शिद्दत से एहसास हुआ कि मुझे इन जड़ी बूटियों के बारे में भी मालूम होना चाहिए था जो जख्मों को फौरन आराम देती हैं। मैंने इस ख्याल के बारे में सिंधु से कहा तो वो कराहते हुए बोला, हाँ भाई जी, मैं कई बार ऐसे मरहलों से गुजर चुका हूँ। मैं जानता हूँ, लेकिन अभी मुझे वो बूटी दिखाई नहीं दी। चलो फिर चलते हैं, मैंने उठते हुए कहा तो उसकी निगाहों में सस्ताने का कहते हुए बोला, बहुत मारा है जालिमों ने। मुझे तो अब यही मालूम है कि हर लम्हा दुश्मन से खबरदार रहो। अब भी वो हर आने वाली रुकावट जो हमारा रास्ता रोकेगी वही हमारी दुश्मन है। हालात और नौयत के साथ दुश्मन भी बदल जाता है। मैंने कहा तो वो सर हिलाने लगा, जैसे वो मेरी बात से इत्तेफाक कर रहा हो। हम वहां कुछ देर बैठे बातें करते रहे। मतवक्का दुश्मन से कैसे निपटना है ये हमने तय कर लिया था। नया पैराग्राफ। जसपाल और रोनीत कुंवर के सामने गरबाज सिंह कुर्सी पर बैठा हुआ था। इन तीनों के दरमियान खामोशी थी। गरबाज सिंह पर तशद्दुद के बाद वाज़िया निशान मौजूद थे। जसपाल ने उसकी हालत देखी, फिर ठहरे हुए लहजे में बोला, गरबाज, अगर तुम चाहो तो हम तुम्हारे साथ एक डील कर सकते हैं। हकीकत ये है कि मैं तुम लोगों का कैदी हूँ। मेरी पोजीशन ही नहीं है कि मैं तुम लोगों से डील कर सकूं। वैसे अगर तुम कोई बात मनवाना चाहते हो तो बोलो, उसे धीमे से लहजे में कहा। मैंने बेबसी से कहा, देखो, मेरी बात को समझने की कोशिश करना। हमें सिर्फ सिंधु से मतलब है। वो हमें मिल जाए तो इसके एवज तुमने जो सिंधु की दौलत इकट्ठी की है हम तुम्हें वो दे देंगे और अपनी हिफाजत में
تمہیں کینیڈا روانہ کر دیں گے۔ جسپال نے تحمل سے کہا، میں پھر وہی کہوں گا، وہ یہاں نہیں ہے، وہ ایک ایسی جگہ پر ہے جہاں وہ کسی کی قید میں ہے۔ وہ اب اس کے ساتھ کیا کرنا چاہتا ہے میں نہیں جانتا، میں اسے اپنی مرضی سے یہاں نہیں لا سکتا، گرباج نے احتجاجاً کہا۔ اس کے ساتھ ہی یہ پارٹ اپنے اختتام کو پہنچا۔